So I've started the recording, and Varisha is there, Balendra is there, Aman, Sanskriti. Who else? Aman or Shailesh? Shailesh, I'm not able to see Shailesh. Shailesh has, I think, left, huh? Or maybe some issue. No problem. I'm sharing my screen. Once you are able to see my screen, just let me know. Are you able to see my screen, guys? No, sir. Yes. Okay. No, So sir. not able to now. Still not, sir. Oh my God. 1 second. Share screen. Uh, Now, are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. So today what we are going to understand about the this is the second video of component communication. We all were know that it's little easy to transfer data from parent to child. Okay, and just a quick recap. We have to use the @ input, correct? And we have to populate those data in master component. Master component is our app component. And how we populate the data? Ultimately, the data will come from the database, but just to understand the concept, we are populating the data from our TS file. Okay, so this is our app.component.ts file. Here we are populating the data, correct? This is the banner. Okay, we've created a property, and there we have given a banner AR mentorship program, correct? And then this we want to transfer to our child component. Our child component is this student info, correct? So why this is our child component? Because in app component.html we are using this child component, okay, and we are using this as a banner, correct? So this is the banner is nothing but our parent data. Now we are saying it will bind to the parent data, okay? And where is this information? This information is in input. So we know that some data will come with the name of parent data. Okay, so we'll go to our TS component. Okay, what we'll do, we'll declare a parent data. Okay, and we'll decorate this with input. So once we'll decorate this with input, we have to import also. So we have imported this, and from where it will come? It will come from Angular core. The input is available to other library also, but it should come from Angular core. If you will not take care and if you import anything, there would be no error, but it will not give you the right output because it has imported from another library. Okay, and then we know that once we have any data, we can bind this through interpolation, correct? So in our HTML, we have bind this, correct? Parent data. So far it is clear to everybody. Any doubt? No, sir. Okay. Now we'll see how to transfer the data from parent component. So come to our parent component. This is our parent component. And if anything you will write will be available to our child. But how to handle the event? So here we have bind the property binding. Now what we are trying to do? We are trying to Event binding. generate some click. Okay, we are trying to generate some button click. We are trying to understand the event binding. Okay, so if we have to bind the event, so there is a concept of emitter. Okay, so all the logic where we write will like all the logic in our TS component. So go and see in your TS component, you have to create the object of you have to we have to create the object of TS component.
Okay, and the data will come from child. Sorry, the data will come from child. So go to the child component. Okay, there create the object of event emitter. Okay, so this is at this name you can give anything. Okay, so first you have to go to your child component from where you want to send the data to parents. Create the object of event emitter. Okay, and again event emitter will come from your Angular core. So this also you have to import. After that, what you will do? You will decorate this as a output. Since you are getting data from parents, so you have decorated this with input @input. Now here you are going to decorate this with @output. Is this clear? And simply you have to create an event of object of event emitter. Correct? Okay. This is our second step. First step, create object, decorate this with output, and import this event emitter. Otherwise, it will give you an error. Okay, then what you have to do? You have to emit it. Okay, so you have to emit it. So how you are going to emit it? So once this will be called, then you have to emit it. So for that, what you have to do? Go there, go to your HTML page. Okay, and what you will do? You will use a event. Okay, and this is the event binding, and on this event you are going to call a normal method. Correct? So it's a very simple. Okay, there is no rocket science. So you know how to call a event. Okay, to call a event, I mean one class also I'll take for one-way binding, two-way binding, interpolation. So that will be more clear to you. But like I mentioned to there are two binding. One is the property binding, one is the event binding. So this is the event binding. So it's a normal button, and on click of that button, you are trying to call any method. Okay, so it's a normal JavaScript code. So far there is no Angular. Angular will come into the picture once you will use this bracket. Okay, so once you have applied this this binding, so this becomes a property binding. So there is a little trick. So and so this you have to decorate with braces. Okay. Now you have to write a normal JavaScript method. So how we write JavaScript method, and we know all our logic part and JavaScript and TypeScript part will be inside TS file. So here we have simply written the call parent event. Okay, this line you have to, I mean, so far you just mug up it initially that whatever event is here, this event emitter will have a method called emit, and whatever you will send it. So whoever is going to capture this, okay, will get this information. Whatever information you are sending from here, that information will be available. So who is going to read it? Our parent is going to read it. Correct now? So go to parent, and there is one annotation which you have to use. It's not an annotation; it's an event itself. So go to parent, and you want to display those data. So suppose I'll bring those data in message. So this way my message will be available. But this message should be in our declaration also. Okay, so where we declare all those things, we declare all those things in TS file. So here we will take this as a blank. Okay, otherwise it will give you error because we want to read this data. But this time we are not hard coding this data. Correct now? This data will come from our input method, our child class. So once it is going to come from our child class, so and if it is if it is coming from event emitter, then there is a special way to read this. Okay, let me tell you what is that way. App component app-component.html. Correct. So this special way is, again, what you have to do, you have to use this $event. So once you use this $event, whatever is written here in your child will automatically come here. Okay, थोड़ा सा tricky है. That's what I'm telling you in the last. Okay, थोड़ा सा tricky है, ये आपको समझना पड़ेगा. Okay, but it's not difficult, and that's the only trick. After that, other concepts are easy.
तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये तो पता है कि ये अभी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको हम कोई भी वैल्यू अगर बाइंड होती है तो इसको हम इंटरपोलेट करते हैं, तो इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं, इस ब्रेसेस को, करली करली ब्रेसेस को। बट जो ये हमारा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के लिए जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट होता है, जो ये वाला, इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसके लिए हम डॉलर इवेंट का यूज करते हैं, ठीक है। ये डॉलर इवेंट ही यूज किया जाता है जो भी इवेंट इमिट हो रहा है उसको रीड करने के लिए। बहुत डिटेल में बताएंगे कि डॉलर इवेंट क्या है, इवेंट बाइंडिंग कैसे होती है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे होती है, वो सब बताएंगे तो क्लियर होगा। अभी आप ये समझ लो कि और ये मैसेज है जिसमें हम इसको असाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस मैसेज में हम यहाँ पे भी इसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आप लोग को आ जाएगा। अभी अभी सुनाई तो दे रहा है ना सबको? इतना इतना साइलेंट क्यों है भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? यस सर। थोड़ा सुनाई थोड़ा देता थोड़ा थोड़ा उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है तो इसलिए सन्नाटा है, बट अब ऐसा ही है, इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है, करेक्ट। आ जाएगा समझ में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इससे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको एक इवेंट इमीटर बनाना है। लेट्स रिपीट वन टाइम। हमको कहाँ से भेज रहे हैं? चाइल्ड से भेज रहे हैं। तो चाइल्ड वाला हमारा कौन सा है? चाइल्ड वाली क्लास कौन सी है हमारी? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। किधर गया? हाँ, स्टूडेंट इन्फो कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या करना है ना, इवेंट इमीटर का, देखो इवेंट इमीटर का कॉन्सेप्ट इसीलिए इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अभी 2-3 क्लासेस जाएंगे ना तो इट विल बी इजी फॉर यू। तो सिंपल सा कुछ नहीं, इवेंट इमीटर का तब यूज करते हैं जब हमको चाइल्ड से पेरेंट में यूज करना है। इसको आप लोग एकदम याद रख लीजिए, पहला कॉन्सेप्ट, ये तो कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इवेंट इमीटर को बनाते हैं तो उसको एट द रेट आउटपुट से डेकोरेट कर देते हैं, करेक्ट। दूसरा हो गया, इवेंट इमीटर को इंपोर्ट भी करना होता है, ये डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं रहता है तो आपको इंपोर्ट करना होता है। और ध्यान रखिएगा कि इवेंट इमीटर एंगुलर कोर से आना चाहिए, इवेंट इमीटर कहीं और भी होता है, कहीं और आप लोग कर देंगे तो यहाँ पे कंपाइल टाइम तो एरर नहीं देगा, रन टाइम एरर दे देगा। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये किसी भी फ्रेमवर्क में होता है कि आप कोई भी क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं बट वो क्लास अलग होती है, वो अलग नेम स्पेस में होती है। तो किस नेम स्पेस से कौन सी क्लास इंपोर्ट करना है वो ध्यान रखना, तो एंगुलर कोर से करना है। तीन तीन कॉन्सेप्ट ये हो गए। चौथा कॉन्सेप्ट क्या है कि ना जो भी ये वैल्यू होगी ना वो इमिट होती है। तो इसका ये सिंटेक्स होता है कि आपने जो भी यहाँ पे इवेंट इमिटर का क्लास बनाया है तो वो उसको इमिट करेगा, ठीक है। लेकिन वो इमिट कब करेगा, ये भी तो कभी फायर होना चाहिए ना। तो ये फायर कहाँ से होगा? जब ये बटन पे क्लिक करेगा। तो जैसे अपने कंपोनेंट पे बटन पे क्लिक करेगा तो बटन क्लिक करने का कोड ये है, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल, करेक्ट। और ये मैंने बताया कि इस वाले ब्रैकेट से ये बाइंड होता है क्लिक इसका। तो कॉल पेरेंट इवेंट करेगा और ये कॉल पेरेंट इवेंट के अंदर हम इसको इमिट करेंगे। यहां तक क्या डाउट है? ये जस्ट 5 स्टेप, ये 5 कॉन्सेप्ट है। चूंकि आप लोग ने ऐसा कभी किया नहीं है इसलिए तो आप लोग को ऑकवर्ड लग रहा होगा, एक दो बार बनाएंगे तो इट विल बिकम इजी, ओके। तो एक बार और बताते हैं कि करना क्या है, ध्यान से सुनिए आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाइल्ड से डेटा पेरेंट में भेजना है, ओके। इवेंट इमीटर का क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लियर है सबको? इसको एट द रेट आउटपुट से डेकोरेट कर देंगे, करेक्ट, क्योंकि यहां से हमको भेजना है। यस सर। वहां पे लेना था चाइल्ड में तो एट द रेट इनपुट से डेकोरेट किए थे, ठीक है। अच्छा, इवेंट इमीटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा इवेंट इमीटर से, ठीक है, कोर के अंदर होता है। ये 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप क्या होता है कि अब ये हमारा इवेंट फायर होगा। जब ये फायर होता है ना तो इसको इमिट करता है ये, ठीक है। तो ये इमिट करता है, तो ये इसका सिंटेक्स, इसको आपको ऐसे ही लिखना है। जो भी आपने इवेंट बनाया, इसको चाइल्ड इवेंट बनाया है, इसको XYZ इवेंट बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, और इमिट के अंदर जो भी वैल्यू आप भेजना चाहते हैं ना यहाँ पे इमिट करिए उसको। अब ये वाला मेथड कैसे कॉल होगा? इस वाले मेथड को तो चाइल्ड कॉल करेगा। तो चाइल्ड का जो कंपोनेंट है वो तो इसके लिए नॉर्मल ही है ना, अपने ही HTML के, अपने ही जावास्क्रिप्ट के TS फाइल को कॉल करना है। तो इज वेरी सिंपल। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इवेंट बाइंडिंग के लिए ये वाला ब्रैकेट यूज किया जाता है, दैट सिंपल, करेक्ट। यहां से अब कॉल करना आ गया। अब जब यहां से कॉल करना आ गया तो इस वैल्यू को हमको रीड करना है। कहां पे रीड करना है? अपने ऐप कंपोनेंट में। तो जो भी वैल्यू को रीड करना होगा जिस भी वेरिएबल में, तो वेरिएबल यहाँ वो प्रॉपर्टी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हमने, करेक्ट। प्रॉपर्टी यहाँ डिक्लेयर हो गया, जैसे पिछली बार बैनर भेज रहे थे, अब यहाँ पे हमको लेना है, प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। कोई वैल्यू इसकी नहीं देंगे क्योंकि हमको पता है उसकी वैल्यू आने वाली है, ठीक है। ये भी क्लियर है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। अब app.component.html में जब जाते हैं, अब यही थोड़ा सा आपको समझना है कि ये जो वेरिएबल होता है ना, इस वेरिएबल में असाइन कर रहा है, और कैसे वो असाइन होता है? एट द रेट इवेंट के अंदर वो जो रहता है उससे
असाइन हो जाता है, और ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग किसकी हो जाती है? चाइल्ड इवेंट की। क्लियर है ये? यस सर। इट्स वेरी इजी। सर थोड़ा करेक्ट। सर थोड़ा क्लियर है। हाँ कोई नहीं, जब अभी प्रैक्टिस कर करेंगे किया तो जाएगा। clear हो जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आप लोग ने समझा नहीं है ना इसको, थोड़ा सा वियर्ड कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए आप लोग को क्लियर नहीं लग रहा है। सुनाई तो दे रहा है ना साफ साफ? अगर सुनाई दे रहा है तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, हमने जो मैसेज भेजा है उसको डॉलर इवेंट से उसको करते हैं, और यही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा वियर्ड है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आसान है। ये इसीलिए इवेंट इमीटर पूछा जाता है, इवेंट इमीटर क्या है, कैसे होता है। ठीक है, और इसको आप चाइल्ड इवेंट से बाइंड कर दीजिए। और चाइल्ड इवेंट को ये आपका ऐप स्टूडेंट इन्फो समझता ही है कि चाइल्ड इवेंट क्या है। कुछ आ रहा है समझ में आप लोग को? अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, चाइल्ड इवेंट। अब बोलूंगा तो मैं थक जाऊंगा। अब आप लोग एक बार बनाइए, उसके बाद से मैं दोबारा समझाऊंगा, अगर नहीं बनेगा तो। ओके सर। रुको, अभी पहले मैं रन करके दिखा दूं। मैंने थोड़े चेंजेस किए थे आज। मैं एक और कंपोनेंट आप लोगों को बना के दिखाने वाला था। 1 सेकेंड, मैं कहाँ चला गया? स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट कंपोनेंट टीएस। ठीक है, और यहाँ पे चाइल्ड इवेंट के अलावा कुछ XYZ इवेंट लिखेंगे तो वही XYZ इवेंट वहां पे भी लिखना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल, करेक्ट, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल। अब मैंने क्या किया था, मैंने, अच्छा अभी मैं इसको रन करूंगा ना तो इसमें कुछ दूसरा चीज रन होगा। दूसरा चीज रन होगा मतलब दूसरा एक एप्लीकेशन बना रहा था मैं इसमें। तो आप लोग इतना बनाने का ट्राई करिए तब तक, ठीक है? मैं तब तक इसको ठीक कर देता ओके हूँ। सर। तब आप लोग इसको बनाइए। और कोई अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैंने मल्टी स्क्रीन शेयर ऑन करके रखा है ताकि मैं देखूं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वरीशा संस्कृति सर आप लोग ट्राई कर। सर ये एडिटर का पूरा दिख नहीं रहा ना। कोई बात नहीं, बाकी लोगों को दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। बाकी लोग बनाए उनको, उनका अभी अमन तो अभी बाहर है ना, कैसे देख पाएंगे? आप लोग आप नहीं लोग सर, बनाइए। हम सोचे थोड़ा कोड पढ़े तो पूरा एडिटर नहीं दिख रहा है। आई थिंक मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ इस वजह से। हाँ, इसीलिए मोबाइल, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि मोबाइल से कनेक्ट हो तो नहीं दिखेगा। हम्म। कोड अभी मत पढ़िए अभी नहीं आप। सर, पूरा एडिटर नहीं दिख रहा है लैपटॉप से भी। अच्छा, आप अभी पूरा एडिटर मतलब? सर जहाँ कोड लिखा है, जहाँ कोड एडिट करते हैं ये दिख नहीं रहा आप लोगों को? शेयर तो कर रहा हूँ मैं। वो दिख रहा है सर, बट ये जो साइड में जो है ना, वो थोड़ा सा कोड उसमें चला जा रहा है। मतलब कि छुप जा रहा है थोड़ा सा कोड। लाइक जैसे अब दिखा था। अभी दिखा था नहीं? एडिटर थोड़ा नीचे। हाँ अब दिख रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वो जब स्क्रीन शेयर करेंगे तो सब उसमें दिखेगा जब रिकॉर्डिंग जाएगी तो अभी आप लोग इसको करिए, ठीक है? इतनी देर में टाइप कर लिया होगा उसने, क्या नाम है, शैलेश ने। क्यों शैलेश? शैलेश और संस्कृति ने टाइप नहीं कर लिया। सर। कल तो टाइप कर लिए थे तो। कल सर वैसे सर एकदम पूरा सर दिखाई दिया था। अभी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अभी मैंने अनशेयर कर दिया है। आप हो गए क्या तुम? अभी मैंने अनशेयर किया है। तुम जानते नहीं हो, मैं VS कोड का मोबाइल वर्जन भी डाउनलोड कर लेता हूँ। वाह। अरे तुम इधर आए हो, कहीं खत्म हो जाए उधर पार्टी का खाना तो। पार्टी में से चले आए भाई, सन्नाटा नहीं दिख रहा है तुमको? कार में आके बैठे। नहीं नहीं, आप लोग वो करिए, मैं तब तक इसको जरा इशू है इसको रिजॉल्व करके दिखाता हूँ। ट्राई करिए आप लोग, जो भी समझ में आता है उतना ट्राई करिए। मैं कोड चैट में पिन करता हूँ। डिस्ट्रैक्ट करना था
मुझे पॉलीफिल स्टाइल सर एक VS कोड से लेके क्वेश्चन था, पूछे? एक सेकंड रुक जाओ। Index.html approved. Let me comment this. Environment.ts में bootstrap हो रहा है app module और के अंदर app module.ts में डिपार्टमेंट हो रहा है, इसको करने में app component save. Okay, department. Now we'll go to student management system. ये गड़बड़ हो गया। गलत पेज आ रहा है, मैं वही चेंजेस कर रहा था ना। डिपार्टमेंट टर्मिनल ओके कमांड प्रॉम्प्ट npm परफेक्ट। इसको टेस्टिंग करेंगे। इवेंट emitted from child to parent। परफेक्ट। म्यूट कर दिया जाए। ठीक है, मैंने अमन को म्यूट कर दिया। गाइस, आर यू एबल क्या टू सी हुआ माय सर? स्क्रीन? कोई प्रॉब्लम थी क्या सर? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपको म्यूट करता हूं मैं। आप अनम्यूट कैसे कर ले रहे हैं अपने आप को? ऑल म्यूट का ऑप्शन नहीं होता है क्या इसमें? ठीक है, तो अभी हम इवेंट इमीटर के आउटपुट को देखते हैं, करेक्ट? इवेंट इमीटर के। ठीक है, तो ये हमारा है कोड और उस पर हमने एक बटन बना लिया है। ये हमारा पेज है, करेक्ट? विजिबल ना? No, sir. Okay, let me share screen. 1 second now. Student management system. अभी शेयर है ना? Now it's visible. इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। न्यू शेयर हमारा ये पेज होगा,
करेक्ट। ये है हमारा, अभी ये है ना हमारा स्टूडेंट। तो हमने क्या किया था, स्टूडेंट पे बना लिया था ना कॉल फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। सो ये हमने बटन बनाया था कॉल फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। और इसको जब हम क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये चीज यहाँ पे आ रही है। लेट मी रिफ्रेश इट। अभी देखिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, करेक्ट ना। ये बैनर जो क्या आ रहा है, पेरेंट से चाइल्ड पे आ रहा है, करेक्ट। ये वाला क्लियर है हम लोग @ इनपुट। अब @ आउटपुट पे हम लोग देख रहे हैं। अब आप इस बटन को क्लिक करेंगे ना जहां पे हमने चाइल्ड इवेंट को बाइंड किया था, तो ये देखिए इमिटिंग इवेंट्स फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट्स, करेक्ट ना। अभी चाइल्ड से पेरेंट पे आ रहा है। क्लियर है ना ये जो हमारा पोर्शन है, ये पोर्शन हम अपना किससे बना रहे हैं, पेरेंट से बना रहे हैं। और ये बटन क्लिक कहाँ पे है, बटन क्लिक चाइल्ड पे है। तो हम जब चाइल्ड को क्लिक कर रहे हैं ना तो बटन क्लिक से ये डेटा यहाँ पे पेरेंट्स पे आ रहा है। ये क्लियर हो रहा है आप लोग को? भाई अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो पढ़ा करिए आप लोग कुछ। इसमें क्या नहीं क्लियर हो रहा है, हम ये बटन क्लिक कर रहे हैं तो ये पेरेंट है ना, यहाँ पे डेटा आ रहा है, करेक्ट आ रहा है ना यहाँ पे। ये चाइल्ड चाइल्ड ये Yes, बटन sir. कहाँ पे है, चाइल्ड पे है। ये डेटा कहाँ Child पे आ पे रहा है? हाँ, तो parent चाइल्ड पे से पेरेंट पे डेटा आ रहा है ना, वही हम समझना चाह रहे हैं कि चाइल्ड से पेरेंट पे डेटा कैसे आता है। तो चाइल्ड पे ही, चाइल्ड से हमारा ये दूसरी स्क्रीन विजिबल है ना, दोनों विजुअल स्टूडियो कोड। नो सर. अच्छा, अभी केवल ब्राउजर ही विजिबल है क्या? 1 सेकेंड, इसमें दोनों का Yes, ऑप्शन sir. नहीं आ रहा। ओके ओके, 1 सेकेंड संस्कृति, शेयर। ऑप्शन कैसे होगा, न्यू शेयर, ओके शेयर। अब आप देखिए, अभी क्या है, हमको चाइल्ड से पेरेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चाइल्ड से पेरेंट का मतलब क्या हुआ, हमारा चाइल्ड कंपोनेंट क्या है, स्टूडेंट इन्फो है, करेक्ट। हमको चाइल्ड से डेटा भेजना है, तो अगर डेटा कहाँ पे होगा, हमारे टीएस फाइल में होगा। इतना क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर है कि @ आउटपुट से इसको डेकोरेट करना है, इसको इवेंट इमीटर बनाते हैं। और इवेंट इमीटर को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो इवेंट इमीटर की क्लास बनाओ, इमिट करो। ये पता है कि इसको आउटपुट से डेकोरेट करोगी, पता है कि ये यहाँ पे आएगा, करेक्ट। ये तो सिंपल है, जो हम लोग पहले से हम लोग समझ चुके हैं। अब जब यहाँ पे अब इसको कॉल करना है, करेक्ट ना, तो इसको कॉल करने के लिए भी तो हमको HTML पे इससे कॉल करते हैं ना, यहाँ तो लॉजिक था। तो HTML पे क्या किया हमने, एक बटन बना दिया, कॉल पेरेंट्स, कॉल फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, करेक्ट। यही बटन हम आपको दिखा रहे थे कि कॉल फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, करेक्ट। और जब इसको कॉल करेंगे, जब इसको हम कॉल करेंगे तो हमको पता है कि इस वाले तरीके से इसको कॉल करते हैं। और जो भी वहां पे मेथड है वो पेरेंट क्या करेगा, उसको सुनेगा। सुनने के लिए क्या करते हैं, डॉलर इवेंट का यूज करते हैं। जब कोई भी चीज इमिट होकर के आती है तो उसको डॉलर इवेंट से करते हैं। ये आप लोग 2-3 बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, तो ये अभी हो जाएगा। अभी करवाते हैं प्रैक्टिस, आपको अभी सारा कोड भेजते हैं, आप लोग बनाएंगे, रन करेंगे, तो वो फिर दिमाग में चला जाएगा आप लोग के। तो अभी हम ऐप कंपोनेंट पे आए, ऐप कंपोनेंट पे आए तो हमने क्या किया कि डॉलर इवेंट से हमको लिसन करना है इसको। तो डॉलर इवेंट से लिसन करने, ये मैसेज, और ये मैसेज हम लोग को पता है कि ये मैसेज में हम असाइन कर रहे हैं और यहाँ पे इसको इंटरपोलेट कर ले रहे हैं। और ये मैसेज एक वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल हमको डिक्लेयर करना होगा। वेरिएबल डेटा ये सब कहाँ पे होता है, टीएस फाइल में होता है। तो ये टीएस फाइल में हमने इसको डिक्लेयर किया है, चूंकि हमको पता है कि डेटा वहां से आने वाला है, तो इसने हमको ब्लैंक रखा है, ठीक है। अब इसका डेमो तुरंत देख लेते हैं। इसका डेमो क्या है, इसका डेमो ये है कॉल फ्रॉम चाइल्ड पेरेंट। जब अब इसको रिफ्रेश कर दें ताकि ये चला जाए, फ्रेशर कॉल फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो गया, ये डेटा यहाँ पे आ गया। parent पे आ गया. तो हाँ आ गया ना। और ये कहाँ पे है, ये Yes, sir. पेरेंट में है, बटन कहाँ पे है, चाइल्ड पे है। तो चाइल्ड से हमने Child पेरेंट में पे है. डेटा, ये इतना क्लियर हुआ ना, इतना क्लियर करिए। तो इसी का सारा वेरिएशन होता है। जैसे क्या है ना कि अब यूजर डिटेल है, उसको शो हाइड करेंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ से डिपार्टमेंट पे जाएंगे, सब्जेक्ट के डिटेल पे जाएंगे। कॉन्सेप्ट यही लगेगा, वो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका। कॉन्सेप्ट इतना ही है, चाइल्ड से पेरेंट का और पेरेंट से चाइल्ड का। देखो ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, ये बहुत लोगों को नहीं आता है, बट लोग आएगा भी तो लोग केवल इवेंट इमिटर बोल पाते हैं। आप लोग कोड के साथ उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं कोड Yes, पिंग sir. करता हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिए, ठीक है। Shall I Okay, sir. shall I ping the code? यस सर। Okay, sir. Okay. मैं कोड एक एक
एक एक पिंग करूंगा। आप लोग पहले आप लोग बनाइए, आप लोग बनाने स्टार्ट करिए। कोई कोई एक बंदा अपना स्क्रीन शेयर करे और पैरेलली दूसरे लोग देखते रहेंगे, जब वो बनाएगा तो क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक चीज दोबारा से बता रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करो अपना, शैलेश अपनी स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। परफेक्ट। चाइल्ड इवेंट बनाया, न्यू इवेंट इमीटर बना लिया। और इवेंट इमीटर को मैं बोल रहा था 50 बार बोल रहा हूँ। अब मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। क्या गलती की हो? इंपोर्ट करना है सर। कहाँ से इंपोर्ट करना है? एंगुलर कोर्स से। एंगुलर कोर्स, एंगुलर कोर्स है सर। कोर्स से तो है सर। और तुम कहाँ से किए हो? तुम कहाँ से किए? और यही गलती हम पहले से बता रहे थे, बताने के बाद भी तुम ये गलती कर रहे हो। गलती किसी को दिखा शैलेश के अलावा कि क्या गलती है? हाँ सर, वो इंपोर्ट Yes, में sir. सर हम लोग को हाँ, इनको जो अभी भी नहीं इंपोर्ट की समझ। पहली लाइन, सर ये इंपोर्ट की जो गलती है पहली लाइन स्ट्रीम। हुआ है। हाँ हाँ, वो इवेंट इमीटर कट करके ऊपर लिखो। क्योंकि मैं बोल रहा था ना, इवेंट इमीटर हुआ, इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, ये सब कहीं ना कहीं और भी होते हैं, बट हमको एंगुलर कोर से यूज करना है। नहीं नहीं, अब दूसरा नहीं, उसी में उठा के रख दो यार। एक और मत इंपोर्ट करो, कर सकते हो बट इसी को कट करो। नंबर ऑफ लाइन हम लोग क्या सीख रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइन का कोड कम यूज करना है। इवेंट इमीटर को कट करके आउटपुट के बाद कॉमा लगा के लिख दो। यस यस, डिलीट इट। इवेंट इमीटर वहां लिखो। और पैरेलली संस्कृति और वरीशा आप लोग करते जाइए, और अमन आप समझते जाइए। बलेंद्र तुम भी करते जाओ। आफ्टर दैट आई विल सी योर स्क्रीन। बैक स्पेस कॉमा लगाना है आउटपुट के बाद से, इसलिए एरर आ रहा है। बैक स्पेस प्रेस करो। हाँ, कॉमा लगाओ आउटपुट के बाद से। आउटपुट के बाद कॉमा लगाइए। आउटपुट के बाद आउटपुट और इवेंट मीटर के बीच में। आउटपुट और इवेंट इमीटर के बीच में। हाँ ठीक है। अभी आपने क्या कर लिया? ये आपने एक इवेंट इमीटर का क्या बना लिया? ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। और उसको आपने डेकोरेट कर दिया @आउटपुट से। यहां तक सबका हो गया। अभी तुम्हारा फेल होगा क्योंकि तुम कॉल पेरेंट इवेंट गलत लिखे हो ना। ये फंक्शन को ठीक से बनाओ। लाइन नंबर 21। यस सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइन नंबर 21 पे ऐसे जैसे एनजी ऑन इट इनिट जैसे बना वैसे बनाओ। हाँ, ब्रैकेट बनाओ, फिर कर्ली ब्रेसेस दे सर दो। हमें सर हमें कि टाइप इसमें कंस्ट्रक्टर। अभी टाइप स्क्रिप्ट हेलो। बताएंगे तो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी जितना बता रहे हैं उतना करो केवल। ओके सर। और टाइप स्क्रिप्ट की 2 क्लासेस होंगे ना, तो सब आ जाएगा। नहीं, दिस डॉट कॉल पेरेंट इवेंट। अच्छा, कॉल पेरेंट इवेंट नहीं, ये नहीं करना है। कॉल पेरेंट इवेंट नहीं चाइल्ड करना इवेंट है। है। चाइल्ड इवेंट। चाइल्ड इवेंट है। चाइल्ड इवेंट। देखो सब लोग बताने लगे ना, वही मैं बोल रहा था, इतना टफ नहीं है। दिस डॉट चाइल्ड इवेंट। जो आपका इवेंट इमिटर है वो नहीं इमिट करेगा। थोड़ा सा सोचो, इमिटर का मतलब क्या होता है? जो इमिट करता हो तो उसी से इमिट करवाओ बाबू। दिस डॉट चाइल्ड इवेंट। अरे डिलीट उलीट करके दोबारा से लिख लो, या फिर ऑल टैब प्रेस करो तो हेल्प करेगा। दिस डॉट चाइल्ड इवेंट। लाइन नंबर 13 पे जो चाइल्ड इवेंट लिखे हो ना, उसको कॉपी कर लो। हाँ ठीक है। दिस डॉट इमिट। कुछ भी लिख दो। तुम तो अपना नाम ही लिखोगे। यू आर सो ऑब्सेस्ड विथ योर नेम। इवेंट फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। कुछ ऐसा लिखो जो तुमको समझ में आए। ठीक है ना, क्योंकि अभी तुम कॉन्सेप्ट बना रहे हो। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऐसी चीज लिखो जो तुमको समझ में आए। इना आ जाएगा सर। चलो, अब क्या करोगे? अब इस मेथड को कॉल करना है। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कैसे किसी मेथड को कॉल करते हैं, और ये चूंकि एंगुलर वाले HTML